Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so I might help them as well. Guys, our today's topic is about measles. Now let's discuss what is measles. Basically, it is a highly contagious viral disease that is caused by measles virus. अब इसमें आपके पास जो फीवर होता है ना, दैट इज़ हाई ग्रेड फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जाता है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी ऑन चिकन पॉक्स, उसमें मैंने आपको बताया था उसमें हमारे पास जो फीवर होता है दैट इज़ लो ग्रेड फीवर। उसके जो रैशेज़ होते हैं दैट फर्स्ट अपेयर ऑन फेस बेसिकली फ्रॉम फोरहेड एंड देन इट स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स, वेयरएज जो हमारे पास चिकन पॉक्स के रैशेज़ थे दे वर फर्स्ट अपेयरिंग ऑन ट्रंक, ठीक है, और उसमें लो ग्रेड फीवर था और ट्रंक से उसके जो रैशेज़ थे चिकन पॉक्स में वो बाकी जगह पे स्प्रेड होते थे टू हैंड्स फीट एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि चिकन पॉक्स की जो हमारे पास वेजिकुलर रैशेज़ थे दे वर फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्यूलोपैपुलर रैशेज़ होंगे, एरिथेमेटस टाइप होगा, ब्लांचिंग टाइप होगी, ठीक है। कॉप्लेक्स स्पॉट्स बहुत कॉमन है और यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कैटरल इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रिस्क फैक्टर्स ऑफ मीज़ल्स। अब मीज़ल्स के रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास बेसिकली अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है, इसके अलावा अगर कोई unvaccinated है due to any medical reasons तो all those people might have the risk to develop measles. Anyone who has missed the booster shot or who has vitamin A deficiency, that may also lead to measles. Now let's see the measles risk factors once again. Any unvaccinated person or partially vaccinated person or person who has contact with confirmed or highly likely case of measles, or any member of an unvaccinated community, or anyone who has traveled to area where measles is circulating, or anyone who has attended a mass gathering event where there was any person who was affected from measles. So all these people or all these persons are at high risk to develop measles. Basically measles has eliminated now, अब इतना ज़्यादा आपको कोई रेयर ही केस होता है कि मीज़ल्स का आपको पाकिस्तान में नज़र आए। स्पेशली ये उन एरियाज़ में ज़्यादा है जहाँ जैसे थर के एरियाज़ हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन कॉमन नहीं है, ठीक है। आपको पता है अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस डेवलप हो गई है और लोग अपने बच्चों को 9 एंड 15 मंथ्स पे मीज़ल्स की वैक्सीन जो है MMR वाली मीज़ल मम्स रूबेला वाली वैक्सीन वो लाजमी लगवा लेते हैं। सो नाउ द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मीज़ल्स हैज़ लाइकली एलिमिनेटेड, ठीक है, लेकिन स्टिल जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ये कॉमन है। Okay, now how contagious is measles? Basically, measles is highly contagious and can live for up to 2 hours in the air. ठीक है, measles virus की बात हो रही है. It is highly contagious and it can live for up to 2 hours in the air. It spreads through coughing and sneezing. Now, when to call your doctor? Call your doctor immediately if you think you or your child have been exposed to the measles virus to avoid potentially spreading virus. Please do not show up without calling. ठीक है. Up to 90% of the people near you who are not immune will also become infected with measles virus. As I've told you कि measles is very common in non-vaccinated people. इसके अलावा जो symptoms हैं they usually begin 7 to 14 days after the person has been infected by the measles virus. So measles से infection हुआ, फिर incubation period रहा, उसके 17 to 14 days के बाद जो है symptoms appear होना शुरू होते हैं. Now, what are the symptoms of measles? As I've told you, symptoms can start anywhere from 17 to 20 days after the exposure, and the symptoms include fever, runny nose, cough, red eyes, इसके अलावा red rashes that start on the face and then spread down the body, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मोस्टली फेस से फोरहेड से स्टार्ट होते हैं और फिर नीचे की तरफ जो है वो स्प्रेड करते हैं पूरी बॉडी में। ओके, एंड माउथ को जब आप देखेंगे ऑरल एग्जामिनेशन आप पेशेंट का करेंगे तो आपको स्मॉल ब्लू वाइट स्पॉट्स जिनको आप कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहते हैं वो आपको माउथ और थ्रोट में नज़र आएंगे। सो दीज आर द साइंस और सिम्टम्स ऑफ मीजल्स, मतलब हाई ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट को, रनी नोज, कफ, रेड आइज, रैशेस दैट स्टार्ट ऑन द फेस एंड स्प्रेड डाउन द बॉडी। इसके अलावा कॉप्लेक्स स्पॉट्स जो कि स्मॉल ब्लू वाइट स्पॉट्स होते हैं जो आपको माउथ और थ्रोट में नज़र आते हैं। देन हाउ कैन मीजल्स बी फैटल? जो सिम्टम्स हैं वो आपने मतलब रूल आउट करने हैं, देखने हैं। सो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रैशेस हैं दैट स्टार्ट ऑन फेस एंड स्प्रेड ओवर द बॉडी, हाई ग्रेड फीवर है, रेड एंड वाटरी आइज हैं, रनी नोज, स्मॉल वाइट स्पॉट्स इनसाइड द चीक्स, ठीक है, मतलब माउथ और थ्रोट में आपको नजर आएंगे। देन कफ,
ऑल ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टाइनी वाइट स्पॉट्स दैट मे अपेयर इन द माउथ, these develop 2 to 3 days after the symptoms begin, ठीक है, and the measles rash that appears 3 to 5 days after the symptoms begin. Usually these rashes, I've told you, they appear on the face and then they spread downwards. लेकिन आपने याद रखना है कि जो measles के rashes जो आपके face से downwards spread होते हैं, they appear 3 to 5 days after the symptoms have begun. और जो mouth के spots हैं, मतलब complex spots हैं, जो आपके पास blue white spots होते हैं, they appear 2 to 3 days after the symptoms have begun, like after the high grade fever, cough, runny nose, watery eyes. After this ये रैशेज और स्पॉट्स जो हैं वो अपेयर होते हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं इस तरह से मीजल्स के रैश होते हैं आपके पास बॉडी में, ठीक है। Okay, so measles is just not a rash. Basically, it is an infection that can lead to serious complications like blindness, hearing loss, brain damage, and difficulty breathing. ठीक है, but obviously it can be prevented by vaccination and by treatment. Now, how would you prevent measles? So there's no cure. The vaccine is the only way to protect yourself from it. What is this basically? Now, measles, as I've told you, it is an extremely contagious viral disease that mainly affects children. The virus spreads when the patient coughs or sneezes or through direct contact with the nasal or laryngeal secretions. To be vaccinated, 15 to 20 जो है number of people with measles can infect. So get vaccinated at your hospital, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है कि अबाउट 15 to 20 नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं उनको मीज़ल्स वायरस एकदम में इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। एक मीज़ल्स वायरस अबाउट 15 to 20 पीपल को अफेक्ट कर सकता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फ्रॉम दिस वायरस, ठीक है, क्योंकि इट इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज़। नाउ पेरेंट्स टू प्रिवेंशन, दिस रोल इज़ टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन बाय वैक्सीनेटिंग देम। सो इट इज़ ऑब्वियसली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, ठीक है। नाउ ये वही सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया। प्रिवेंशन में क्या है, आपको प्रिवेंशन पता होनी चाहिए दैट वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद एन अल्कोहल बेस्ड रब, देन कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, अवॉइड शेयरिंग food, water, utensils, and other items contaminated with saliva. If you are infected, then isolate at home for at least 4 days. Avoid contact with people who are vulnerable to infection. Give infants the first dose of MMR, measles, mumps, rubella vaccine between 12 and 15 months. पाकिस्तान में 9 months पे फर्स्ट डोज लगती है एंड 15 months पे सेकेंड डोज लगती है। नाउ हेयर दे हैव समराइज सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, ठीक है। सिम्टम्स में आपको पता है रैश, हाई ग्रेड फीवर, रेड वाटरी आइज, कफ है। ट्रांसमिशन इज़ हाईली कंटेजियस, एयरबॉर्न होती है फॉर 2 hours, ठीक है। एंड प्रिवेंशन किस तरह से है, द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीजल्स इज़ MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्प्स रूबेला की वैक्सीन है। इफ़ यू एंड योर चाइल्ड शो साइंस ऑफ मीजल, कॉल अहेड if possible before visiting any medical office, so precautions can be taken to avoid spreading the illness. Now इसमें भी आप एक बार ये वही डिवाइस किया हुआ सारा, ठीक है। measles vaccine, measles mumps rubella vaccine is given in 2 doses, first dose between 12 to 15 months ideally and second dose between 4 to 6 years। लेकिन हमारे पाकिस्तान में 9 months पे फर्स्ट डोज एंड 15 months पे सेकेंड डोज जो है वो पेशेंट को लगती है, ठीक है। प्रिवेंशन में यही है कि आप कीप योर हैंड्स वॉश्ड, मेंटेन योर हाइजीन, स्टे होम व्हेन यू आर सिक, कवर कफ्स एंड स्नीजेस, वेयर मास्क्स, ठीक है, एंड गेट MMR वैक्सीन, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस द केस नाउ। ऑलमोस्ट यू नो दैट negligible cases are being reported of measles due to strictness of vaccines, MMR vaccines at 9 and 15 months, but still the cases exist in villages like Thar, जो कि सिंध में है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, या उन एरियाज़ में जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ पे वैक्सीनेशन कॉमन नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स एंड ऑल्सो बोथ हैव द सेम मैनेजमेंट मोर और लेस, क्योंकि इस पर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मेनली हम पेशेंट को देते हैं।
कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं देते हम एज सच। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इट इज़ ट्रीटेड ऑन इट्स ओन आफ्टर अबाउट 7 to 10 days। मीज़ल्स और चिकन पॉक्स के दानों में फ़र्क ये होता है कि दोनों के दाने पूरे जिस्म पर जो है वो निकलते हैं, बट मीज़ल्स में आपको पता है कि थोड़े एरिथमेटिस टाइप दाने होते हैं, ठीक है, वेयर चिकन पॉक्स में ब्लिस्टर्स टाइप दाने होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, ठीक है। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीज़ल्स इज़ अबाउट 7 to 14 days। उसके बाद फिर आपके पास सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होते हैं, और जब पेशेंट को सिम्टम्स अपेयर हो जाए तो पेशेंट सफ़र्स फॉर अबाउट 5 to 6 days। इसमें सिम्टम्स क्या है कि हाइब्रिड फीवर होता है पेशेंट को 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, रनी नोज होता है, कंजंक्टिवाइटिस इज़ बेसिकली कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया भी डेवलप हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है पेशेंट को। नाउ रैशेज ऑफ द मीसल्स फर्स्ट फॉर्म ऑन द फेस एंड देन दे स्प्रेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। एरिथमेटिस मैक्यूलर पैपुलर ब्लांचिंग होती है ऑन द होल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पेशेंट को जब आप ऑरल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका मुंह का एग्जामिनेशन करते हैं, तो कॉपलेट स्पॉट्स आपको मुंह में नज़र आएंगे, वाइट ब्लू कलर के स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। और टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को, बार्किंग कफ हो सकती है, जनरल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी आपको देखने में मिल सकते हैं, ठीक है। एंड डिहाइड्रेशन में पेशेंट जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट में ये है, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन आप सिम्टोमेटिकली पेशेंट को मैनेज करते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस आर सीन इन दोज पेशेंट्स हु आर मैल नरिश्ड और इम्यूनो सप्रेस्ड। मोस्टली इट इज़ सीन इन चिल्ड्रन, रेयरली आपको ये कंडीशन जो है मीज़ल्स की एडल्ट्स में नज़र आएगी, जस्ट लाइक मम्स एंड मीज़ल्स, ठीक है। सो इट मोस्टली अफेक्ट्स चिल्ड्रन नॉट एडल्ट्स, ठीक है। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे कि आप फीवर को कंट्रोल करेंगे बाय स्पॉन्जिंग, आप उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और हाइड्रेशन मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पेशेंट का जो ब्लड है वो फिल्टर होता रहे, ठीक है। देन आप मल्टीविटामिन्स देंगे पेशेंट को ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टेड रहे। उसके बाद प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया, आप MMR वैक्सीन जो 9 और 15 मंथ्स में पाकिस्तान में लगती हैं वो आप लगवाएंगे पेशेंट को। 4 to 5 days आपने पेशेंट से कहना है कि अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। आपने उसके एटेबल्स, क्लोथिंग, यूटेंसिल सारा जो है अपने चीज़ों से ज़रा सेपरेट रखना है फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days। दैन फीवर के लिए आप उसको स्पॉन्जिंग करवाएंगे, ठीक है, स्पॉन्जिंग करेंगे उसकी ताकि उसका फीवर कम हो। पैनाडोल सिरप, पैनाडोल देंगे, या सिरप फेब्रोल या सिरप ब्रूफिन आप दे सकते हैं। 10 to 15 mg पर kg इसकी डोज़ होती है, TDS में दें, ठीक है। सिरप पैनाडोल की डोज़ है, और इस तरह सिरप ब्रूफिन की 10 mg पर kg डोज़ होती है, TDS में दें। मैक्सिमम आप 40 mg पर kg दे सकते हैं इन अ डे सिरप ब्रूफिन की, लेकिन आप TDS में दें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा उसको, ठीक है। फिर आप सिरप फेनर्गन दे दें या सिरप रिजिक्स दें, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक्स हैं, ठीक है। और सिर्फ फेनर्गन में प्रोमेथाजीन हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। 20 mg पर kg पर डे जो है वो दे सकते हैं। देन छोटी पोटेंट एंटी हिस्टामीन्स जो हैं, इट प्रिवेंट्स इचिंग बेसिकली, सो इसलिए हम ये देते हैं सिरप्स। एंड इसके अलावा जो स्क्रैचिंग, रनी नोज, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, कफ वाले जो सारे सिम्टम्स हैं जो हिस्टामीन ड्रिवन हैं, ये सारे इनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, सिरप्स। इसके अलावा कफ़ के लिए आप कोरेक्सटी देंगे, ठीक है, ओनली गिवन इफ द सिम्टम ऑफ कफ इज़ प्रेजेंट टू द पेशेंट, तो फिर आप कोरेक्सटी जो है वो दे सकते हैं। इसमें आपके पास डेक्स्ट्रामेथ्रोक्रिन होती है, ठीक है, और क्लोरफेनामीन होती है, एफेड्रीन होती है, ठीक है, या बीडी में दें, या आप जो है कोफ्रेस्ट भी दे सकते हैं, सिर्फ कोफ्रेस्ट, ठीक है। फिर विटामिन ए सैशे आप दे सकते हैं पेशेंट को, या ए मैक्स ऑरल ड्रॉप्स दे सकते हैं, ओनली गिवन इफ देयर आर सिम्टम्स प्रेजेंट रिलेटेड टू विटामिन ए, ठीक है। पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आप फिर OD में देंगे पेशेंट को, ठीक है। देन आप आई इन्फेक्शन अगर पेशेंट को डेवलप हो चुका है तो फिर आप टोब्राडेक्स आई ड्रॉप्स भी देंगे BD में या TDS में। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एंटीबायोटिक, ओनली आप उस केस में एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे अगर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन पेशेंट को डेवलप हो चुका है, इन केस ऑफ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी या मैल नरिश्ड पेशेंट है, तो उस केस में आप जो है एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे, जिसमें आप फिर सिरप ऑगमेंटन या सिरप एजोमैक्स 10 mg पर kg जो है वो सिरप एजोमैक्स जो है वो उस तरह से OD में दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। अदरवाइज देयर इज़ नो एज सच नीड ऑफ एनी एंटीबायोटिक्स। सो आई होप आपको ये केस जो है वो समझ आ गई है। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।